Okay, so we did just revise the property of parallelogram. Now, in a parallelogram, let us say, we tend to change certain characteristics of diagonals. We know that in parallelogram, diagonals bisect each other, right? That is what we know in a parallelogram, of course, apart from all the other properties that we have discussed. So let's say these are the figures A, B, C, D. These are the points. And we know that diagonals bisect each other. So this diagonal and the other diagonal, right? So obviously we know that they are bisecting, but they are not bisecting at 90 degree. Can you see this is not 90 degree? Now, if you try to make sure, मान लेते हैं ऐसे मेरा diagonal टेढ़ा है, you try to make sure that the two diagonals bisect each other at 90 degree. What is the minimum figure that is generated? What we are trying to do, we are trying to intersect the diagonals at 90 degree. I mean, इन अ पैरेललोग्राम, लेट्स से हम इसको थोड़ा नीचे करें, इसको ऊपर करें, एक ऐसा समझो जैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि भाई धागा है, चारों तरफ बाउंड्री है. नाउ व्हेन यू ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ डायगोनल्स, you try to extend the diagonal, or you can try to intersect the diagonals perpendicularly, then what is the minimum figure that is generated? rhombus बनेगा सर. Minimum figure जो बनेगा वो rhombus बनेगा. Sure? Yes sir. Yes, the minimum figure that is generated. So when you are trying to make sure that diagonal bisect at 90, okay? If it bisects at 90, the minimum figure that we are trying to, the minimum figure that will be generated would be a parallelogram, right? Now, since this parallelogram, if you see, is formed from, sorry, we said rhombus. I mean, you see the rhombus is slightly an advanced version of parallelogram, right? Because we did not, within the parallelogram, we have tried to change the characteristics of diagonals. Rest everything was same. So can I say that a rhombus is also a parallelogram? Can I call a rhombus a parallelogram? Yes sir. Yes. So therefore, if you can call a rhombus a parallelogram, that means all the properties of rhombus will be inherited by, all the properties of parallelogram will be inherited by rhombus. So that means opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals bisect each other, right? Diagonals will divide it into two congruent triangles. So all these characteristics will hold true. So we can write all those characteristics that we studied for parallelogram. But in addition, what are the additional properties that we can talk about in a rhombus which is not present in parallelogram? Diagonals bisect at 90 degrees. Very good. So one of the important thing is that diagonals bisect at 90, or all four sides are equal. very good. Not only opposite sides are equal, all four sides are equal. This is important, right? All four sides are equal. So ये दो additional property है इसके अंदर. Other than that, every other property will be same as the rhombus. Now, one of the applications of this knowledge is, let us say we know in rhombus all the four sides are equal. So obviously, let us say this is the side A. So all the four sides are A. Now let me say this diagonal is D1, and let us say this diagonal is D2. So what is the relationship that exists between D1, D2, and A? बताओ. फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हो जाएगा. बताओ क्या आएगा? D1 square plus D2 square is equal to 2A square. 2A square. Yes sir. 4A square आएगा सर. 4A square equals to D1 square plus D2 square. है? 4A square equals to D1 square plus D2 square. Yes, absolutely. ठीक है नव्या, गलती हो गई पता है. ये पूरा D1 है, तो Yes, इसका sir. ये आधा हो जाएगा D1/2, और ये हो जाएगा D2/2, और ये 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस थ्योरम सेज A square
is equal to d1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 by 2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना, साइड का स्क्वायर होता है तो डिनोमिनेटर भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 square, or a square is equal to d1 square upon d2 square upon 4. So this is the formula. This is used at different places. I mean, this is a standard result which we are expected to know. तो ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है. अच्छा, अगर हम रोम्बस के अंदर ही, सॉरी रोम्बस कह रहा हूँ, पैरेललोग्राम के अंदर ही डायगोनल्स को बराबर करना चाहें, ठीक है, हम इसमें क्या करना चाहते हैं, डायगोनल इक्वल करना चाहते हैं. ठीक, हम अगर डायगोनल को इक्वल करना चाहते हैं तो बताओ मिनिमम फिगर क्या बनेगी? Any idea? Rectangle. Very good. It's getting a rectangle. So you see that rectangle is formed from parallelogram. Therefore, all the characteristics of parallelogram will always exist in this, like opposite sides are parallel, opposite sides are equal. That means AB is equal to DC. I'm not writing these properties because we have discussed parallelogram extensively in previous sessions. So opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals bisect each other. So what is the additional property that we may have in a rectangle? सर चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं कॉर्नर. Okay, so यहाँ पे चारों साइड बराबर थी और यहाँ पे not only opposite angles are equal, all 4 angles are equal. ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है एक डायगोनल को लेके क्या हो सकता है? यही तो था, Diagonals are equal. बिल्कुल, तभी ये हमारी फिगर बनी थी. अब इसके अंदर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है एडिशनल, जैसे कि इसके अंदर जो है ना डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल, यानी ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, जैसे ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा और ये वाला इसको करेगा. समझ में आ रहा है? ऑपोजिट बराबर है इसलिए सेम. सो इसके अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करता, मैंने कहा था ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, इसके अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे. इसके अंदर क्या होएगा, क्या डायगोनल बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? सर नहीं करेगा. नहीं करेगा, डायगोनल्स विल नॉट बाइसेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं इस रोम्बस में जो डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, मान लो ये छोटा ना डायगोनल नजर आ रहा है, इसको मैं खींच के लंबा करूं और इस फिगर को बनाऊं तो फिगर क्या बनेगी? काइट. नहीं, Square. काइट तो तब बने, हाँ, मैं इसको बराबर करूंगा दोनों को. सो द मिनिमम फिगर दैट इज जनरेटेड इज अ स्क्वायर. सो द फिगर दैट विल बी जनरेटेड इज अ स्क्वायर. तो जो स्क्वायर है मेरा वो कहां से बन रहा है? रोम्बस से. तो कैन आई से इट विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. So not only opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals divide each other into 90 degree, diagonals bisect each other, diagonal will divide opposite angle equally. All those characteristics are present in square. What is the additional property that is present? सर इसके भी चारों एंगल 90 होंगे. इसमें भी चारों एंगल्स 90. अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स बराबर हैं, मान लो यू सी द रेक्टेंगल्स are having same diagonals, right? Length of the diagonal is same. Now if I make sure कि मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूं, इस डायगोनल को नीचे लाके इसको 90 डिग्री करने की कोशिश करूं, तो फिगर क्या बनेगी? फिगर फिर से स्क्वायर बनेगी. इसका मतलब है स्क्वायर के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रेक्टेंगल की भी हैं. इसका मतलब है स्क्वायर कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड सो फार. उसके ऊपर जो भी पढ़ा है, लाइक ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, नॉट ओनली दे आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल 4 sides are parallel, all 4 sides are equal. Opposite angles are equal, not only opposite angles are equal, all 4 angles are equal and each angle is equal to 90 degree. Now diagonals bisect each other. Diagonals not only bisect each other, they bisect each other at 90 degree and are also equal. They also bisect the opposite angles. So all the properties that we have studied above are incorporated in square. So you see square is generated from
a parallelogram. This parallelogram, मैं यहाँ थोड़ी छोटी फिगर बना देता हूँ, ये कुछ तो लिखा था मैंने पिछली क्लास में। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास क्या था, क्वाड्रिलेटरल, फिर मेरे पास क्या था, ट्रेपीजियम, ठीक है। इसका मतलब है, आप ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटरल से वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स करके मैंने ट्रेपीजियम बनाया था, ट्रेपीजियम से दोनों पेयर ऑपोजिट करके मैंने पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम से फिर फर्दर हमने रोम्बस और रेक्टेंगल बनाया, और फिर दोनों से हमने स्क्वायर बनाया। नाउ कैन आई से अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम? Yes, sir. Can I say parallelogram is a quadrilateral? Yes, sir. Can I say quadrilateral is a square? No. No. No, sir. So what I'm trying to say, the most advanced figure, जो नीचे वाली figure है, that can always be called as an upper figure, but upper figure cannot be called as a lower figure, because the lower figure is more symmetric and contains more properties than the upper figure, and therefore lower figure is, can be a subset of the upper figure, but upper figure is not a subset of the lower figure. So square can be called as a rectangle, a square can be called as a parallelogram, a square can be called as rhombus, square can also be called as trapezium, but vice versa is not true. You cannot say trapezium is a square, you cannot say rectangle is a square. आ रही बात समझ में? So these are certain characteristics of four-sided figure that we studied in the previous session. This is what was remaining. सर हाँ जी, सर रोम्बस और स्क्वायर में मेन डिफरेंस क्या है सर? रोम्बस में ना स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को ऐसे पिचका दोगे तो टेढ़ा हो जाएगा। मान लो ये देखो स्क्वायर, राइट, स्क्वायर में 90 डिग्री है, सारे के सारे 90 डिग्री हैं। जब हम इसको पिचका देंगे तो सब प्रॉपर्टीज तो ठीक है, लेकिन ये एंगल कम हो जाएगा और ये एंगल बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर चारों एंगल नहीं बराबर होते हैं, चारों एंगल उसके और सिर्फ ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं रोम्बस में। स्क्वायर को आप पिचका दो, मतलब स्क्वायर को नीचे बेस ठीक रखो, ऊपर ऊपर उसको धक्का दे दो, तो फिर ये रोम्बस बन जाता है। ये डिफरेंस है, देखने में ये डिफरेंस है, टेक्निकली डिफरेंस है कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर के अंदर चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री होता है। ये डिफरेंस है, ठीक है? यस सर। ओके, देन talking about a property of rectangle, let us say I have a random point somewhere in between P, some point P, and I join this point AP. It is not a straight line. I have just joined AP, PC. Let's say I've joined this. It is not neither on diagonal nor somewhere. PB, PD. So PA square plus PC square is equal to PD square plus PB square. ये रिजल्ट है, याद रखना आपने। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बना हुआ है एग्जाम में कि चार लोग चार कोने पे खड़े थे, गांव के चारों कोने पे, ठीक? तो 4 people were standing at 4 different corners of a village. There is a well somewhere in between, somewhere inside the village. Let us say the point is P. The distance of the well from A is, let's say, 20 meters. A के पॉइंट A से कितनी दूरी पे? 20 मीटर की, इससे 30 मीटर की, इससे 40 मीटर की। तो बताओ D से कितनी दूरी की मीटर पे, right? So if this is the question, this is the answer. X square plus 40 square is equal to 20 square plus 30 square. That will give you the answer. It's an important result as far as rectangle is concerned. सर ये सिर्फ रेक्टेंगल में या बाकियों में भी काम आ जाएगा जो पैरेललोग्राम? रेक्टेंगल में। ओके सर। या फिर स्क्वायर में, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है? इज रेक्टेंगल रोम्बस? यस, नो सर।
नीचे वाली फिगर को ऊपर वाली फिगर बोल सकते हैं, ऊपर वाली को ना तो नीचे वाली बोल सकते हैं ना बगल वाली को भी बोल सकते हैं, उन दोनों को नहीं बोल सकते। ठीक है, आ रही बात समझ में यहाँ तक? यस सर। अब हम देखते हैं, अच्छा स्क्वायर के अंदर एक दो चीजें, बहुत बेसिक चीजें। मान लेते हैं ये साइड ए है, तो डायगोनल को कैसे लिख सकते हैं? मान लो डायगोनल डी है, तो डायगोनल की क्या वैल्यू होगी? सर √2 होगी। सो ये डायगोनल मान लो डी है, सो डी इज गिवन एज √2a. व्हाट इज गिवन एज a can also be taken as d by √2, है ना? a की वैल्यू क्या हो सकती है? d by, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर एरिया होता है ए स्क्वायर, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी ए स्क्वायर इज डी स्क्वायर बाई 2, राइट? तो एक एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ डी स्क्वायर, इसलिए बता रहा हूँ। मतलब ये एक इंटरचेंजेबल है, ये हमें आना चाहिए बिल्कुल इजीली। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? इसके बाद हम आते हैं पॉलीगन्स पे। ठीक है, विल कम डाउन टू पॉलीगन्स। क्या होते हैं पॉलीगन्स? व्हाट आर पॉलीगन्स? सर जिसमें काफी सारी लाइनें जुड़ जाएं, मतलब 4 से ज्यादा हो। हाँ, so is a triangle a polygon? यस No. सर। Yes, sir. Triangle is a polygon of 3 sides. Square is a polygon of 4 sides. 5-sided polygon is known as a pentagon. 6-sided hexagon, septagon, octagon, nonagon, decagon, 12 So these are the nomenclatures depending on the number of sides. Now, there are primarily two types of polygons. Let's say one of these types of polygon these are the kind of polygon if all the sides are equal. Not all the sides. This kind of polygon is known as convex polygon. अभी बताता हूँ definition क्या है convex polygon. Then if you have something like ऐसी कोई फिगर है, इसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन, या फिर इसको री एंटर्ड पॉलीगन। री एंटर्ड मतलब मान लो ये पकड़ के ऊपर कोना अंदर कर दें, ये कोना बाहर होता तो कॉन्वेक्स हो जाता, इसको हमने अंदर कर दिया तो इसको हम री एंटर्ड बोलते हैं। ठीक है, री एंटर्ड पॉलीगन। सो हाउ डू यू डिफाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन? मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। डेफिनेशन तो ये है कि बट if you draw any line containing 2 points of the polygon, if all the sides, if all the vertices lie on the same side of the line, then it is known as a convex polygon, else it is known as a concave polygon. So if we draw a line containing 2 sides vertex of the polygon and all other vertices lie on the same side of the line, then it is known as convex polygon, else it is known as concave polygon. इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट्स चूज कर लिए, ये, और मैंने लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, 2 वर्टेक्स। अब जो बचे हुए वर्टेसिस हैं वो सारी लाइन के राइट साइड में आ रहे हैं। अब ये बात हर लाइन के लिए सच होनी चाहिए। यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो भी सच है, यहाँ करोगे तो भी, यहाँ करोगे तो भी, यहाँ करोगे। इस वाले केस में जब अपन ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यहाँ ड्रॉ किया, ये दोनों सारे वर्टेक्स लाइन के एक तरफ हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो सर हमने ये वाली लाइन चूज कर ली है, समझ में आ रहा है? अगर हमने ये वाली लाइन चूज कर ली है, तो अब क्या है कि कुछ पॉइंट्स लेफ्ट साइड में आ रहे हैं और कुछ पॉइंट्स राइट साइड में आ रहे हैं, तो ये कॉनकेव पॉलीगन, ये इसकी डेफिनेशन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। पॉली का मतलब मेनी साइडेड फिगर जो होती है, एन साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज एन साइडेड पॉलीगन।
ठीक है. Now, the kind of questions that we get, we basically end up getting questions on what we call as a regular polygon. So what we are going to really study is a regular polygon. तो regular polygon क्या होता है? What is a regular polygon? सर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा? ये रेगुलर पॉलीगन है, सारी साइड्स बराबर है. क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? सारी साइड्स बराबर है. क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? सारी साइड्स बराबर है. क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? सारी साइड्स बराबर है. ये है, ये नहीं है, ये है, ये है. तो रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. All sides are equal and most importantly all angles are also equal. अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रोम्बस है, ठीक है. रोम्बस में सारी साइड्स बराबर हैं, बट क्या सारे एंगल्स बराबर हैं? नहीं. तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है. ठीक है. अब हमें निकालना होता है टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन. अब आपको पता है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है. ट्राइंगल, ये बात जो मैं बता रहा हूँ टोटल इंटीरियर एंगल, वो सारी फिगर्स के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो रेगुलर फिगर हो. तो मान लेते हैं हम 3 साइडेड फिगर की बात करते हैं. 3 साइड्स, 3 साइडेड फिगर ये हो गया ट्राइंगल. 3 साइड्स में कितने ट्राइंगल बनते हैं? एक ट्राइंगल. तो टोटल इंटीरियर एंगल कितना होगा इसका? 180 डिग्री. 180 डिग्री बनेगा, है ना? क्योंकि into n minus 2. बिल्कुल. तो अगर मान लो मेरे पास 4 साइडेड फिगर है, मैं कितने डिस्टिंक्ट ट्राइंगल बना सकता हूँ? 2. ट्राइंगल इसलिए क्योंकि मैं टोटल इंटीरियर एंगल काउंट, तो 2 ट्राइंगल बनेंगे तो टोटल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 2 into 180. ठीक है. अच्छा, मान लेते हैं मेरे पास कोई 5 साइडेड फिगर होती. ठीक है. कितने अलग अलग ट्राइंगल्स बना सकते हैं हम? 3. ठीक है. तो अगर मेरे पास 5 साइडेड फिगर है तो हम 3 ट्राइंगल बना सकते हैं. तो टोटल इंटीरियर एंगल हो जाएगा 3 into 180 विच इज व्हाटएवर 540. 6 साइडेड फिगर है, कितने बना सकते हैं? 4 ट्राइंगल. तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 4 into 180. अच्छा, 7 साइडेड फिगर होती तो कितने ट्राइंगल बनते? 5. अब इसी को ऑब्जर्व करो, अगर n साइडेड फिगर होती कितने ट्राइंगल बनते? n minus 2. n minus 2 ट्राइंगल्स. टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता? जो किसी ने मेरे को बताया था अभी. So total interior angle in a polygon is n minus 2 into 180 degree. तो मेरा टोटल इंटीरियर एंगल है. ठीक है. अगर वो रेगुलर पॉलीगन होता तो क्या आप बोलते हैं? सारे एंगल बराबर होते, है ना? अगर वो रेगुलर पॉलीगन होता तो कैन वी से सारे एंगल्स बराबर होते? यस सर. और कितने एंगल्स होते हैं? जितने साइडेड पॉलीगन है. जैसे 3 साइडेड पॉलीगन है तो 3 एंगल है. 4 साइडेड पॉलीगन है तो 4 एंगल है. 5 साइडेड पॉलीगन है तो 5 एंगल है. तो n साइडेड पॉलीगन में कितने साइड्स, कितने एंगल्स होंगे? n. n. तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? ईच इंटीरियर
for regular polygon? Sir, total of angles n divided minus by 2 n. into 180 by n. Yes, total है n minus 2 into 180, बट नंबर ऑफ एंगल्स हैं तो ईच एंगल ये हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये इंटीरियर एंगल है मान लेते हैं, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा मानोगे? हाँ बोलो. सर ये वाला रिजल्ट नहीं समझ आया सर, एक बार फिर बताना. आपके पास कुछ लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों के पास 20 सेब है, हर एक के पास कितने सेब होंगे? 20/10. तो टोटल सेब है ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है? 10. ऐसे है क्या? तो टोटल एंगल है n माइनस 2 इंटू 180. ये कितने लोगों में डिवाइड होगा? n लोगों में. सर मतलब ये फॉर्मूला क्या, एक सिंगल एंगल निकालने के लिए? हाँ, मान लो n साइडेड फिगर है तो ये वाला एंगल कितना होगा उसका, उसकी बात हो जाएगा. मान लो ये हेक्सागन है, ठीक है, ये क्या है? हेक्सागन है. तो हेक्सागन का टोटल एंगल कितना होएगा? 6 साइड्स हैं, 6 minus 6, 2 180. और टोटल कितने एंगल हैं इसमें? 6 तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा? 120. तो ये एंगल 120 डिग्री है, इसका ये मतलब है. अच्छा, इसमें फिर एक चीज होती है, ये इस जो अंदर वाले एंगल, इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स. ये क्या है मेरे? इंटीरियर. तो एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? क्या ये एक्सटीरियर हो जाएगा पूरा ये वाला? नो, नो ये सर. ये नहीं होता. लाइन एक्सटेंड करके. हाँ, या तो लाइन को हम क्लॉकवाइज एक्सटेंड कर दें या हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें. किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लाइन को एक्सटेंड कर दें तो जो एंगल बचेगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये ये, तो कौन कौन से एंगल? 1 2 3, ये एक्सटीरियर एंगल है. इसके अंदर मान लो मैंने इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, 1 2 3, ये एक्सटीरियर एंगल है. इसमें मान लो मैंने इसको कर दिया, इसको ऐसे ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे. तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी जितने इंटीरियर एंगल है उतने एक्सटीरियर एंगल होंगे, है ना? तो ये जो टोटल एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो कितना होता है? हमेशा किसी भी फिगर का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, याद रखना है. डिराइव भी कर सकते हैं. टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, सॉरी टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. ठीक है. चूंकि सारे इंटीरियर एंगल इक्वल है तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर फिक्स है. तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एंड इंटीरियर प्लस करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री. हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. मान लो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल 120 है, चूंकि ये सीधी लाइन है तो एंगल कितना हो जाएगा? 60, तो क्योंकि सीधी लाइन है. मान लेते हैं ये मेरा स्क्वायर है, हमको स्क्वायर के बारे में तो सबको पता ही है. ये एंगल 90 है, चूंकि इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90. ये एंगल 90 है तो इसको एक्सटेंड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 90. ये कितना हो जाएगा? 90. ये कितना हो जाएगा? 90. तो इंटीरियर अगर सेम है तो एक्सटीरियर भी सेम होगा. ईच एक्सटीरियर एंगल हमेशा हम निकाल सकते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n करके. ठीक है. इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा सीधी लाइन बनेगी, वो हमने बता दिया यहाँ पे. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे जो मैंने बताए किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलीगन के. बोलिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है. इसके बाद अगर हम खूब, जैसे मान लो पेंटागन है 5 साइड है, हेक्सागन है 6 साइड, ऐसे अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज्यादा कर दूं तो फिगर कैसे क्या बनेगी? तब भी पॉलीगन ही रहेगा. सर्कल बन जाएगा. तो सर्कल क्या पॉलीगन होता है? No, sir. सर सर्कल को तो हम बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कहते हैं, लाइंस का तो नहीं कहते. कह सकते हैं. So circle is a polygon with infinite number of sides.
सर बट सर पॉलीगन में हम स्ट्रेट लाइंस नहीं कंसिडर करते हैं। हाँ, तो उसमें भी स्ट्रेट लाइंस है ना, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस है। स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ना। जब तुम 12th में कोनिक सेक्शन वगैरह पढ़ते हो, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची तो ये आपको कर्वेचर नजर आएगा, है ना। और अगर मेरा सर्कल और बड़ा हो गया, खूब बड़ा सर्कल है, और मैंने लाइन एकदम एज पे खींच रहा हूं ऐसे, जब इनफाइनाइटली लार्ज सर्कल हो जाएगा और जब ड्रॉ करोगे, कट करोगे, तो जो सबसे छोटा कंपोनेंट है, देखो कर्वेचर, वो कर्वेचर कम होता जाएगा। तो जब इनफाइनाइटली लार्ज सर्कल होगा तो इनफाइनाइटली लार्ज इसका कर्व भी इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा। इनफाइनाइटली लार्ज होके कहाँ पहुंच जाएगा? स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाएगा। तो इसने इन अ सेंस स्ट्रेट लाइन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कर्व। स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ कर्व। तो फिर कर्व फिर कैसे डिफाइन करोगे इसको? तो circle can be defined as, of course there are other definitions also, locus of a point equidistant from the given fixed point, that is the most common definition that is used for circle, right? Locus का मतलब होता है path, path traced by a point. What is the characteristics of path? It has to be at a fixed distance from a given point. So let's say this is the given point. उससे एक फिक्स दूरी है, मान लो ये। अब इससे एक फिक्स दूरी पे अगर हम खूब सारे पॉइंट्स बना दें, इससे फिक्स दूरी पे अगर हम खूब सारे पॉइंट्स बना दें, तो वो जो पॉइंट है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। चूंकि हम इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाएंगे तो वो लाइन सॉलिड हो जाएगी और फिर हम उसको सर्कल के नाम से जानने लगेंगे। सो दैट इज आल्सो ए सर्कल। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द। अब लोकस का मतलब पाथ। मान लो आप, मैंने कहा आप यहाँ पे ना एक रस्सी पकड़ के खड़े हो जाओ और मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ और मैं भागूंगा ऐसे टेंशन में, मतलब मैं रस्सी अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तुमने वहां फिक्स करके रखी है, और मैं रस्सी लेके भागना चाहता हूं। तो अगर भागोगे तो क्या होएगा? इस तरीके से घूम जाएगी रस्सी पूरी की पूरी। तो ये पाथ हो गया, किसका हो गया? एक ऐसे पॉइंट का। कैसा पॉइंट है? जो इस गिवन पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ से कोई भी दूरी लोगे तो हमेशा ये फिक्स होगा। इस फिक्स दूरी को हम किसी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेडियस के नाम से जानते हैं। इस मूविंग पाथ को हम एक नाम से जानते हैं। 2-3 नाम है इसके। इसका नाम है पेरीमीटर, इसका नाम है सरकमफरेंस, इसका नाम है पेरीफरी, ठीक है, इसका नाम है रेडियस, इसका नाम है सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक डेफिनेशन है सर्कल की। इट्स अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। दैट गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और यहां से जो फिक्स दूरी है हम उसको रेडियस बोलते हैं, इसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं। If you join 2 points on a circle, right? If you join 2 points on a circle, it is known as chord. When this chord passes through the center of the circle, when the chord passes through the center of the circle, you call it as a diameter. It is also called the longest chord. Circle का जो सबसे बड़ा chord होता है वो यही होता है. It is also called the longest chord, right? Now, when this chord moves on towards the periphery of the circle and touches at only one point, you call it as a tangent. Now, when this chord, is extended from to an external point, then it is known as a secant. समझ में आ रहा है? तो ये कुछ डेफिनेशन है, जो लाइंस हैं जो हमारे पास कनेक्टेड है. So I have center, I have radius, I have diameter, I have chord, I have secant, I have tangent. So these are some of the lines which are connected with circle. Right. So we are going to study certain properties and characteristics about circles in today's session. ठीक है? Now, what are the some basic characteristics? Let us say perpendicular on the chord will, even before that there are a few more things. Let us say I take 2 points on the chord AB. It is known as arc AB.
Now, if you are using 2 alphabets, this is, known as minor arc. Now, if you use, let's say यहाँ पे मैंने X लिख दिया, and you use 3 alphabets, sorry, right? If you're using 3 alphabets, A, X, B, then it is known as major arc, right? Then there is something known as measure of arc. There is something known as measure of arc. So measure of arc means the central angle made by the points at the center of the circle. इसको measure of arc बोलते हैं. तो अगर कोई पूछे what is the measure of arc? Measure of arc is the angle made by the radius from the 2 points to the center. This is known as measure of arc, let us say theta. It is also known as central angle. It is also known as central angle, right? Now, if these 2 points, if you draw 2 chords from these 2 points at the periphery, this angle is known as inscribed angle. And of course, we are going to study the relationship between central angle and inscribed angle. Also, we'll try to figure out the proofs, right? So these are certain characteristics and traits of lines. Okay, that we are going to study in the geometry part. Okay, now let's start with some of the most elementary properties in a circle. So these are nomenclature that we have discussed. So let us say the first property, a perpendicular on the chord will bisect the chord. So that is the chord, let us say. And I am drawing a perpendicular from the center to the chord. So what is given to me that this is 90 degree. So let us say this is center O, this is chord A, this is B, and we are drawing a perpendicular. Right, so OP is perpendicular to AB. This is given to us. So what we can say, we can conclude AP is equal to PB. Right, that means OP will bisect the chord. So how do you, I mean, nobody is really going to ask us the proof, but just for the sake of understanding, because we have done this idea in the previous class. How do you prove that it's perpendicular? You draw this. This is radius. You draw this. This is radius. So where am I moving? कैसे? अब क्या करूं बताओ? RHS property. Absolutely, very good. So we can use RHS congruency theorem. Right angle, hypotenuse. This side is common. OP is common. So using RHS congruency theorem, this triangle and this triangle are congruent. And therefore AP is equal to PB using CPCT. CPCT क्या होता है? पढ़ते थे ना बचपन में? Common parts of Corresponding part of corresponding corresponding parts of congruent triangle. हाँ, corresponding parts of congruent triangle, CPCT. तो मतलब congruent triangle के ये part correspond कर रहे हैं, इसलिए AP is equal to PB. इसका converse क्या होना चाहिए? Bisector of the chord will be, क्या होगा? बाइसेक्ट, अगर मैंने बाइसेक्टर बना दिया 90 डिग्री. वेरी गुड, विल बी परपेंडिकुलर. इसी का तो कन्वर्स है ना. तो मान लो मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, और ये मेरा मान लेते हैं कॉर्ड है, और हमने इसका बाइसेक्टर बनाया है, ठीक है. तो मान लो ये इसके बराबर है, ये इसके, दिस इज गिवन टू अस. हाउ डू यू प्रूव इट? कैसे कहोगे 90 डिग्री है? व्हाट डू यू अप्लाई? साइड कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी. वेरी गुड, साइड कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी. कैसे? ये मेरा रेडियस है, ये मेरी कॉमन साइड है, ये मेरी गिवन है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी. और अगर SSS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी तो दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट वी आल्सो नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो एंगल 1 प्लस इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है. परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. फिर equal chords are equidistant from the center.
equal chords are equidistant. कहां से? फ्रॉम सेंटर. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है और मैंने एक कॉर्ड ये बना दिया लेटर से ए बी, एंड मान लो मैंने एक और कॉर्ड बना दिया, मान लेते हैं सी डी. हमें पता है ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट. सो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. इसका मतलब ये है कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर से अगर मैं इसकी दूरी नापूं, इस कॉर्ड की ये वाली, या इसकी दूरी नापूं ये वाली, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए. कैसे प्रूव कर सकते हो इस बात को? ए बी और सी डी बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा. ठीक है, मान लेते हैं पी और क्यू है, तो कहना इसे पी डी इज इक्वल टू क्यू बी, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. समझ में आ रहा है? और क्या कर सकते हैं? ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है. क्या लगेगी बताओ अब? 90 डिग्री, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, एंड दिस साइड पीडी इज इक्वल टू क्यू क्यू. क्या लग जाएगा? RHS. RHS लगते ही CPCT मान लेते हैं, ये मेरी O है तो OP इज इक्वल टू OQ. इसका मतलब है पर इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है ना तो सेंटर से उसकी दूरी बराबर होगी. कॉन्वर्स क्या होगा इसका? कि अगर सेंटर से दूरी बराबर है तो कॉर्ड्स बराबर है. हाँ, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल. समझ में आ रहा है? इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल. अब इसमें बोर तो नहीं हो रहे क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है, ये हमें पता होना चाहिए. आई कैन ओनली ट्राई टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ मेमोराइजिंग इट, लेकिन लगे रहना पड़ेगा इसके अंदर. ठीक है? यस सर. Okay, then we have equal chords will inscribe equal angles. So property क्या है? Equal chords या equal arcs भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आर्क बराबर होगी ना तो कॉर्ड वो इंस्क्राइब इक्वल एंगल्स. क्या मतलब है? ये मेरे पास सर्कल है. ओके, माय बैटरी इज गोइंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, सो इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल एंगल्स इंस्क्राइब इक्वल एंगल. क्या मतलब है? मान लेते हैं मैं या तो मैं आर्क मान लेता हूँ, ए बी मान लेता हूँ. ठीक है, या तो आर्क मान लो या एंगल मान लो, एक कॉर्ड मान लो. तो अगर हम ये एंगल बनाते हैं इसका यहाँ पे और इससे बनाते हैं यहाँ पे, ये कुछ तो एंगल बनाएगा, मान लेते हैं थीटा. ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक सी है और आर्क डी है. यहां से अगर हम कोई एंगल इंस्क्राइब कराते हैं, मान लेते हैं तो ये एंगल बराबर होगा थीटा. ठीक है, और ये भी तो आपने देखा ही होगा कि अगर डिफरेंट इक्वल आर्क्स हैं तो भी एंगल बराबर होगा. तो अगर अपन इसी वाले आर्क से और एंगल्स बनाएं तो ऑब्वियसली वो बराबर होंगे.
ऑफ कोर्स इसका हम अभी प्रूफ भी मैं बता दूंगा। तो angles inscribed by a chord will always be equal and equal chords will inscribe equal angles। यहाँ chord का क्या मतलब है, यहाँ मैंने chord बनाया नहीं है, लेकिन अगर हम chord ले लेते हैं, ये वाला chord, तो चूंकि इसी chord से बना रहे हैं, तो चाहे इक्वल chord मान लो चाहे आर्क मान लो, तो इक्वल आर्क्स विल इंस्क्राइब इक्वल एंगल्स या इक्वल chord विल इंस्क्राइब इक्वल एंगल्स एट द पेरिफेरी। ये हमारा प्रॉपर्टी है। अभी हम इसको देख लेंगे सेंट्रल एंगल से प्रूव करके कि ये हिस्सा क्यों हो रहा है, बट this is a property characteristics we are expected to know। ठीक है। now central angle inscribes central angle is twice the inscribed angle, या फिर हम ये भी कह सकते हैं inscribed angle is half of central angle। क्या मतलब है इसका, मान लेते हैं मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, और मान लो ये मैंने एंगल इंस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, और एक एंगल मैंने इंस्क्राइब कर दिया, तो ये मान लेते हैं मेरा ए है, बी है, ये मान लो मेरा पॉइंट पी है, ये मेरा सेंटर है, और मैंने ये सेंट्रल एंगल बना दिया ऐसा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एंगल ए ओ बी है इज ट्वाइस एंगल ए पी बी, or I may want to say angle APB is equal to half of angle AOB. So how do you really understand, that this happens? Of course, nobody is really going to ask us the proof, but then this knowledge is certainly useful subsequently. Let me say I join PQ, right? Now, if I look at triangle POA, can I not say that this angle is an exterior angle? अभी किया था ना, extend कर देंगे। Now we know exterior angle is equal to sum of alternate interior। ये मैंने बताया था क्या, exterior angle is equal to sum of alternate interior angles in a triangle, या पता है? सर पता ही है शुरू से। पता है। ठीक है, तो और हमें पता है ओपी की जो लेंथ है और ओए की लेंथ है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि Yes, रेडियस sir. है। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। सो दिस एंगल इफ इट इज अल्फा, so this angle will also be alpha, and chunki exterior angle is equal to sum of alternate interior angle, this will become 2 alpha. Similarly, if I were to look at this triangle, let us say this angle and this angle is equal, it may not be alpha, it could be anything, beta also. So this angle will become exterior angle, this becomes 2 beta. Now if you look at angle P, it is nothing but alpha plus beta. If you look at angle O, it is 2 alpha plus 2 beta, which is twice of alpha plus beta, which is nothing but angle P. So angle O is equal to twice. So central angle is twice the inscribed angle, right? So if you know that this angle is 2 alpha plus beta, and using the same arcs, if you tend to draw other circle, for example, let's say this is, now since we know it is 2 alpha plus 2 beta, so this is obviously half of 2 alpha plus 2 beta, so this becomes alpha plus beta, so this becomes alpha plus beta, therefore this becomes alpha plus beta. So this is the property that we have studied in the previous example. So that is the application. So central angle is twice the inscribed angle is half of central angle, equal arcs will inscribe equal angles at the periphery. ठीक है? Then we have something known as an alternate segment theorem. ठीक है? Alternate segment. So first we need to understand what is segment. Segment, of course, when we study areas हम देख लेंगे, but let us say this is a circle and I draw a chord. So there are 2 segments. So this is one segment and the upper one is, this is another segment. So these are 2 segments. तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो मेरे इसके लिए alternate segment येलो वाला हो जाएगा, alternate येलो के लिए alternate segment जो है वो ये जो लाइंस वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि if I draw a radius on the tangent, right? If this is a tangent and this is my center. Now if I draw a radius on the tangent, it is always perpendicular. तो हमें ये पता होना चाहिए radius on tangent is perpendicular.
यानी जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा टेंजेंट के. नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी एंड हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्टरनेट सेगमेंट. अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सेज the angle made by the tangent and the chord will be same as the angle inscribed by the chord at the periphery in alternate segment. Now, what do you really, mean when we say something like this? So, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, मान लेते हैं टेंजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से यहां पे मैंने एक कॉर्ड बनाया मान लेते हैं, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा. So this, if you inscribe using this chord on the periphery of the circle, so this angle and this angle will be equal. So angle made by the chord and the tangent will inscribe the same angle at the periphery of the circle in alternate segment. क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है नीचे वाली सेगमेंट में है, जो जैसे लाइन नीचे वाली, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट कहाँ है? ऊपर. क्योंकि इस कॉर्ड से आप ये एक एंगल ऐसा भी तो बना सकते हो. अगर आप बोलो कि अल्टरनेट सेगमेंट नहीं होता तो इसी के अंदर इस कॉर्ड से दो एंगल बनाए जा सकते हैं, बट हम ये नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हम कैसे समझाऊं मैं आपको, मैं भी आपको बताता हूं. इसको ये क्या हो गया, सेलेक्ट, एक मिनट होल्ड करना है, क्या हो गया इसको, नहीं रख दो, हाँ रख दो इसको अंदर, हाँ रख दो, हाँ 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 हाँ. Let's say I have this is my center and I draw this radius here, right? So this is center. Now we know that radius on this is 90 degree. So this angle is 90 degree, total 90 degree. Out of this is theta. So I know that this remaining angle should be 90 minus theta. Now if I were to join these two lines, so if this is 90 minus theta, this should also be 90 minus theta. Why? Because these two are radius. Right. Now we know in a triangle total angle is 180 degrees. So if you want to find angle O, let's say not theta, let's say I'm looking to find angle O. So can I say angle O is equal to 180 minus of 90 minus theta plus 90 minus theta? So what do you see? You see 180 minus of 180 plus 2 theta. So this goes there. So angle O is 2 theta. Now, if this angle O is 2 theta, the inscribed angle by this would be here. So we have just now studied that central angle is always twice. So this angle has to be theta. So the angle made by the tangent and the chord will be same as the angle inscribed by the chord at the periphery of the triangle in alternate segment. So this is an important result and you will be requiring this. Okay. So making sense, alternate segment. Then we come down to, pair of circles and the relationship between certain lines
and na chichi rakho isko. So the relationship between the tangents and the circles. So let's say I am having two different circles. So how many direct common tangents can be drawn? Two. Yes, we can draw two direct common tangents. Sorry. Assuming ये touch कर रहा है, इसको हम direct common tangent बोलते हैं. And we can draw how many? Two transverse common tangent. Transverse common tangent ये जो अंदर की तरफ आते हैं. ठीक है, अब ये टच तो नहीं कर पाऊंगा मैं इसको. ठीक है, ये यहाँ टच हो रहा है, मान लो ये ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये ऐसे आएगा, मतलब कुछ ऐसे. तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ठीक है, ये मान लेते हैं इसका सेंटर C1 है, ये इसका सेंटर C2 है. ठीक है, तो जो मेरा डायरेक्ट, और लेट अस से इसको हम चाहे कहीं पे भी बना सकते हैं. मान लेते हैं मैंने इसको रेडियस R1 बोल दिया, इसका मैंने रेडियस R2 बोल दिया. सो जो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो अंडर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर. C1 C2 का क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर C1 C2 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. कोर्स हम प्रूव कर सकते हैं परपेंडिकुलर डाल के, बट नॉट रिक्वायर्ड हियर. देन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर. अच्छा, मुझे बताओ, इन दोनों को देख के आप क्या कह सकते हो? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बड़ा है? सर ट्रांसवर्स बड़ा होगा. क्यों? लग रहा है. प्लस है ना बीच में, इसलिए लग रहा है. एक बात नहीं, बता. नहीं, देख के देख के तो उल्टा समझ में आना चाहिए, छोटा दिख रहा है ट्रांसवर्स. तो देख, C1 C2 यानी लेंथ है, उसमें से अपन ने कुछ घटाया, ज्यादा बड़ा घटाएंगे तो कम बचेगा ना. यस सर. तो R1 प्लस R2 घटाएंगे तो छोटा होएगा. अब एक बात सोच, वो तो ऊपर ऊपर टच कर रहा है, ये तो उसके अंदर अंदर आ गया ना. सर लग रहा था मैं गलत बोल रहा हूँ. हाँ चलो, हाँ बट अच्छा लग रहा गलत बोल रहा हूँ, ठीक है. बट ठीक है, मतलब ऑब्वियसली यू नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट बात है. ट्रांसवर्स इज एन हाइपोटेन्यूज. नहीं, व्हाई ट्रांसवर्स इज एन हाइपोटेन्यूज? ये परपेंडिकुलर है, थोड़ी ना हाइपोटेन्यूज होगा. किसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज होगा? ट्रांसवर्स हाइपोटेन्यूज नहीं होगा. ठीक है, अच्छा. तो ये हमारे दो डिस्टिंक्ट अगर ट्रायंगल सर्कल्स हैं तो हमारे पास दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है. ठीक है, व्हाट इफ आई हैव टू सर्कल्स प्रेप द डाया. पर डाया तो हम ले नहीं रहे ना यहाँ पे. डायमीटर कहाँ ले रहे हैं हम? यहाँ डायमीटर तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ ये रेडियस ले रहे हैं. हाँ, अगर आप ये कहो कि ये ट्रांसवर्स इस पॉइंट पे है, मैंने इसको ड्रॉप बना के डायरेक्ट बना दिया, तो ये अगर मेरा मतलब देखो, ट्रांसवर्स इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब ये रेडियस तुम इस पे डालोगे तो ये 90 डिग्री नहीं बन जाएगा, ये 90 डिग्री बनेगा. तो जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लाइन होती है जो 90 डिग्री के बनाने में काम नहीं आती है. तुम ट्रांसवर्स लोगे जो कि टेंजेंट है, टेंजेंट पे जैसे ही तुम परपेंडिकुलर बनाओगे सेंटर से पास करता हुआ कोई भी लाइन,
तो वो 90 डिग्री बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज थोड़ी ना बनेगा ये इसका। तो अब इसको मान लो तुम ऐसे ज्वाइन करते हो, अब ये लाइन कोई टेंजेंट थोड़ी ना हुई जो तुम कह रहे हो। समझ में आ रहा है ओम? Which diameter are you considering? Where is the diameter? ओम समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अरे इट इज नॉट कॉल्ड डायमीटर, ये डायमीटर थोड़ी ना है। डायमीटर क्या होता है? ये तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स है ना। डायमीटर तो वो होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉर्ड, तो कॉर्ड के अंदर ही होना चाहिए। हाँ वो जो तुम कह रहे हो ना, वो प्रूफ की बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, मतलब करना है तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, कर भी सकते हो। ये इस पे 90 डिग्री है मान लो, ये इस पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब मान लेते हैं R1 बड़ा है, तो तुम क्या करोगे, यहां से अगर तुम एक लाइन ऐसे बना दो और ये वाली लाइन ऐसे बना दो, ठीक है, तो ये जो C1 C2 है, जो ग्रीन लाइन है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमने इसको रेक्टेंगल बना दिया मान लिया। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, ये C1 C2 लेंथ हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये इसके पैरेलल हो गई और इसके बराबर हो गई। अब आप ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये वाली जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ R1 है और उसमें से R2 माइनस कर दो, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगी। This small portion, this will become 90 degree. Now this will become hypotenuse. C1 C2 is becoming hypotenuse. So we have R1 minus R2 का whole square plus direct common tangent का whole square is equal to C1 C2 का whole square, and therefore if you want to write direct common tangent का whole square is C1 C2 का whole square minus R1 minus R2 का whole square. So we have direct common tangent is under root of C1 C2 का whole square minus R1 minus R2 का whole square. So possibly that is what you are saying. The problem is you are using the word diameter, which is suddenly creating confusion. It is the distance between the two centers, right? Okay, I hope we are on the same page now. Okay. So now if you have two circles, and let's say, they are in touch, in that case, you will obviously have two direct common tangents and one transverse common tangent. तो दे सॉरी क्या हो गया, तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए हमारे ये, और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, सो वी कैन ऑलवेज से दैट वी आर हैविंग टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड जीरो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इस वाले केस में तो यहाँ पे हो गया दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, जीरो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और अगर मेरा जो सर्कल है, ठीक है, वो अंदर किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जीरो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। और अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मान लेते हैं ऐसा और ऐसा, तो जीरो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जीरो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स यू नो दिस, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हमारा रिलेशनशिप है, टेंजेंट्स और सर्कल्स को लेके। ऑफ कोर्स
इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है एंड यू ड्रॉ टू एक्सटीरियर tangents from a given point. Let's say this is P, this is A, this is B. So we know PA is equal to PB, right? And of course, once again, you can certainly prove it by taking this, joining this line. This will become a perpendicular here using a Pythagoras theorem. So this length and this length are equal. So you can prove these two triangles congruent, and therefore you can prove PA is equal to PB using RHS congruency theorem, right? Then there is also a property in terms of tangent and let's say secants. Let's say we are having 2 points coming from an exterior point, let's say P, AB, and CD. Of course, using similarity triangle, we can always say PA into PB is equal to PC into PD. So PA into PB is equal to PC into PD. Now, if you merge these 2 points C and D into a single point, so what do you see? Right? If you let's say PAB, you merge this, let's say C and D. So instead of saying PA into PB is equal to PC, and let's say that we are merging these 2 points into T, so this becomes PT square. So these are results. I mean, you will get questions on these results directly. सर ये सिमिलैरिटी तो फ्रैक्शन में नहीं यूज होती थी, PA अपॉन PB में? क्या PA अपॉन PB? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना। PA अपॉन PB नहीं बनेगा ना, PA अपॉन PC बनेगा। क्या हुआ? करना है, प्रूव करना है। सर PA और PC कैसे, समझ नहीं आया। PA into PB is equal to PC into वही कह रहा हूँ PD. कि हाँ, PA अपॉन PB तो थोड़ा दिमाग में आ रहा था, बट वो आपने PA into PB कहा ना, तो वो समझ नहीं आया कैसे। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। ये कॉमन ले लेगा, ये प्रूव कर लेगा, ऐसे ले ले, इसको प्रूव कर ले। ठीक है, ये एंगल सेम हो जाएगा ना यहाँ से ये वाला, क्योंकि ये कॉर्ड सेम है। मुझे लगा आप DB को ज्वाइन करके पैरेलल करूं, तुम सोच रहे थे ऐसे करूंगा, ये कह रहे हो क्या? इन दोनों को ज्वाइन, वो पैरेलल होंगे नहीं होंगे गारंटी थोड़ी ना है। ओके सर, ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसको कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट माइंड यू, मैं इसको बना इसलिए नहीं रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कोई नहीं, इसको छोड़ दो। ओए मेरा फोन। ओके, सो ये सब वैसे शायद अपने वाले ना बुक में होगा नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं, तो हो सकता मिल भी जाए कहीं, बट इसको समझ लेना। आई एम नॉट वेरी क्लियर कि अवेलेबल और नॉट। ओके, सो सर्कल्स में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बचती हैं? नहीं बचती हैं। इसके बाद हमारा शुरू होगा मेंसुरेशंस, पेरीमीटर्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वो हम अगली क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, वो शुरू पूरा कर लेंगे। सर्कल्स मैंने लगभग कवर कर दिया है। बोलिए, एनी प्रॉब्लम इन दिस ज्योमेट्री? नाउ दिस एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ योर प्लेन ज्योमेट्री पार्ट, द बेसिक फॉर्मूलेज एंड दोस थिंग्स। सर ट्रिग्नोमेट्री अभी होना है या हो चुका है? होना भी है और हो भी चुका है, दोनों ही बातें हैं। अच्छा, तुम्हारा होएगा, हमारा करा देंगे, जिनका नहीं हुआ है उनका होना है, कराना तो है ही। ठीक है सर। बच्चों का हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होएगी? इनवर्स रिक्वायर्ड नहीं है अपने को।
जो अपने ज्यादातर क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं वो ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ हद तक अगर थोड़ा बहुत वो सम डिफरेंस वाला आ जाता है। सर एक रिक्वेस्ट थी, हाँ बोलो। वो जब आप ग्रुप में मैसेज डालते हो क्लास का, साथ में टॉपिक डाल दिया करो, क्योंकि मेरे ना बीच बीच में टॉपिक बचे हैं, तो फिर मैं वो क्लास ज्वाइन कर लिया। हाँ तो अभी तो ज्योमेट्री चल रही थी इसलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने अभी जैसे अगली क्लास तो ये लेनी पड़ेगी ना, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना इसको। ठीक है सर, ठीक है, बाकी मैं मतलब डाल जैसे दूंगा। जैसे नया टॉपिक होगा आप साथ में मेंशन कर देना कौन सा टॉपिक होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो देन। हाँ बोलो। सर वो अगर कोई डाउट वगैरह हो तो सर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं मैं। हाँ व्हाट्सएप कर देना, कोई बात। नेक्स्ट क्लास कल है पर अब अभी क्या है कि सैटरडे संडे जो वीकेंड वाला है वो अलग लगता है। कल कौन से बैच की बात कर रहे हो पहले तो ये बताओ, और कौन बोल रहा है, पहले मैं ये भी देख लूं फिर मैं समझ में आ जाएगा। जानवी जानवी। हाँ तुम्हारा शेड्यूल वहां से आता है ना, कुछ तो करनाल से भी आता है ना सैटरडे का। यस सर। हाँ तो फिर कल मैं ये नहीं रखूंगा, ओके। ठीक है। और अगर ठीक है मन है तो दिन में खैर मेरी भी क्लास में कहोगे तो मैं वही 7 साढ़े 7 रख देता हूँ, शाम को इसको कर लेंगे आगे। कल तुम्हारा क्या शेड्यूल है पानीपत में? सर 1 से 4 ही ऑनलाइन क्लासेस हैं। 1 से 4? 4 12 बजे क्या है? 12 बजे तो कुछ भी नहीं। 12 से 2 कुछ नहीं है? नहीं 12 से 2 नहीं, 2 से 4 क्या है? 2 से वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की है क्लास कल हमारी मैथ्स की।